আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128। অনুষ্ঠানটি নিবেদন করছে স্নিগ্ধতার পরশে ঝলমলে আলোয় মেখে শুভমঙ্গল উৎসবে সাজবে আজ বধূ বেশে। বধূ কোন আলো লাগলো শিবম, প্রতি মুহূর্তের উৎসবের গয়না। শিবম জুয়েলারি হাউস, চিরদিনের। আপনি কি একজন বই প্রেমী, কিংবা আপনি কি বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু আপনার পছন্দ মতো বই কোথা থেকে ক্রয় করবেন ভাবছেন? এখন আপনার এলাকায় মীরা পুস্তকালয়ে আপনি পেয়ে যাবেন সমস্ত ধরনের বই। যেমন এখানে পাবেন স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তক, বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষার বই, এছাড়া ধর্মগ্রন্থ, শিক্ষামূলক সামগ্রী, অফিস স্টেশনারি, ড্রয়িং সামগ্রী এবং খেলাধুলার সরঞ্জাম মীরা পুস্তকালয় থেকে ক্রয় করতে পারবেন। তাহলে আজই যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়, সুকান্ত মোড়, কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগের জন্য নম্বর 8945933128।
উত্তরবঙ্গের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নর্থ বেঙ্গল এলিট গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি চলছে। আমাদের ইনস্টিটিউশন নর্থ বেঙ্গল এলিট ফার্মেসি কলেজ, যা পিসিআই দ্বারা অনুমোদিত এবং স্টেট কাউন্সিলের অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত। ইনস্টিটিউশনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ল্যাব, লাইব্রেরি ও ওয়েল অ্যাকোমোডেটেড বিল্ডিং। বিগত 10 বছর ধরে সুনামের সাথে বিএড ও ডিএলএড এর কোর্স সহ চলছে নর্থ বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যা এনসিটি দ্বারা অনুমোদিত এবং বিএসএইউ ও ডাব্লিউবিবিপি দ্বারা অ্যাফিলিয়েশন প্রাপ্ত। আমাদের ক্যাম্পাসে রয়েছে বাংলা মাধ্যম কো এডুকেশনাল স্কুল, নর্থ বেঙ্গল এলিট কলেজিয়েট স্কুল, প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। সেপারেট হোস্টেলের সুব্যবস্থা আছে। স্থান ডালখোলা স্টেশন থেকে 10 কিলোমিটার দূরে নর্থ বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ক্যাম্পাস, বিকোর, উত্তর দিনাজপুর। শিলিগুড়ি সিটি অফিস, ইস্টার্ন ইনফা এডুকেশনাল সলিউশনস, পাল ভবন, ফার্স্ট ফ্লোর, শিব মন্দির, শিলিগুড়ি। ভারত সরকার কাঁটাতার দেওয়ার কারণে যে সমস্ত জমি প্রয়োজন তার জন্য টাকা নিয়ে বসে থাকলেও রাজ্যের জমি লিভার অনুমতি না পাওয়ার কারণে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া অনেক জায়গাতেই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তার সাংবাদিকদের এই কথা জানান। তিনি বলেন, অবিলম্বে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ না করলে ভবিষ্যতে এর ফল খুব খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং রাজ্য সরকারের উচিত অবিলম্বে উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত জায়গায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া সম্পূর্ণ হয়নি তার জন্য জমির ব্যবস্থা করে দেওয়া, অন্যথায় অনুপ্রবেশ বন্ধ সম্ভব নয়। ভারত সরকার সেই জমিদাতাদের টাকা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, অথচ জমি পাওয়া যাচ্ছে না। এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল এবং মালদার বিধায়ক গোপাল সাহা। में करीब 57 किलोमीटर का पूरा जो है उस क्षेत्र में था, और मैं आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है 57 किलोमीटर में करीब 960 मीटर ही ओपन बॉर्डर है, बाकी सब फेंस हो चुका है। अभी रायगंज में कुछ जगह पे है, रायगंज का भी जो है आपका ऑलरेडी एमएलए ने उस विषय को टेकअप किया है, कुछ मालदा है, लेकिन ये जो फेंसिंग नहीं होने की भी देरी जो है, ये कोई जो है बीएसएफ के कारण या एमएचए के कारण नहीं है। भारत सरकार एमएचए जहां सेटलमेंट के लिए जो पब्लिक को, ग्रामवासियों को खेती के लिए, किसी जमीन के लिए जो भी कंपनसेशन देना होता है उसके लिए तैयार है, देती भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से एनओसी नहीं मिलता, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सहयोग नहीं मिलता। तो मुझे ऐसा लगता है जब बात देश की आती हो, सीमाओं की बात आती हो, मुझे लगता है सब सरकार को मिलके काम करना चाहिए। सारे प्रशासन को, सुरक्षा बल को जो है प्रशासन के लोगों ने भी पूरी उनकी सहायता करनी चाहिए। স্যার, এই ব্যাপারে জেলা থেকে কি কোনো অসহযোগিতা আপনাদের মানে বিএসএফ এর সঙ্গে বা কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে কোনো রকম কোনো করা হয়েছে, এরকম কোনো কিছু? नहीं, जो मैंने आपको बताया ना, देखिए ऐसा है कि बीएसएफ का काम ये तो एक्टिव काम है, जिंदगी भर चलने वाला बॉर्डर का इश्यूज है, लेकिन ये तय है और बहुत मतलब ऐसे जगह पे जहाँ पे बीएसएफ को या सेना को लगता है कि हमको जो सहायता मिलनी चाहिए, तो उस तरह की सहायता पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से नहीं मिलता, ये भी सच्चाई है। आप भी नॉर्थ बंगाल, मालदा में घुसपैठियों के साथ बीएसएफ ने गोली भी चलाया है, क्या बोलना? पहली बात तो जो भी पश्चिम बंगाल में आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ये सब बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बाद ये सब घटनाएं परिस्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन आप देखो, पूरा हमारा बॉर्डर की सुरक्षा हमारे बीएसएफ के और सेना के जवान करते हैं, और जिस मालदा की आप बात करते हो, उसी मालदा में जब घुसपैठी आकर के जो है, जब बाउंड्री बनाने का काम करते हैं, जो बॉर्डर को फेंसिंग करने का काम करते हैं बीएसएफ के जवान, तब उधर से जाकर के बांग्लादेश के लोग आकर के उसका विरोध करते हैं। उस समय हमारे भारतीय नागरिक के युवा पीढ़ी बीएसएफ के साथ खड़े होकर के बॉर्डर को बनाती है, और मैं हमारे सेना, हमारे बीएसएफ, मैं उनको सलाम करता हूं। उनकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है, उनकी वजह से हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। अभी इस कार्यक्रम में पहुंचने से 2 घंटे पहले मैं चोपड़ा बॉर्डर में ही था, मैं पूरा बॉर्डर घूम करके आया, और मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये कह सकता हूं कि हमारा देश और हमारी सीमाएं बीएसएफ और हमारे जवानों के कारण सुरक्षित है।
और कितने फांसी border दावा में में भी कितने तो जगह- फांसी दावा में भी तो जगह में एक ही आप प्रॉब्लम है। क्या फेंसिंग देने गया था और घुसपैठियों के साथ बीएसएफ का देखिए आप मैं एक चीज बता रहा हूं, बीएसएफ और सेना हमारी बॉर्डर और हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है। न मुझे उनको सुझाव देने की आवश्यकता है, न मुझे उनको कोई ज्ञान देने की आवश्यकता है, और वो हमारा काम भी नहीं है। और जिस वातावरण में, जिस कठोर परिस्थिति में रह करके काम कर रहे हैं, हमें उनके ऊपर गर्व होना चाहिए और हर भारतीय नागरिक ये करता भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में आकर के समस्या यहाँ इसलिए उत्पन्न होती है कि टीएमसी और ममता बनर्जी जैसे इनको लगा कि बांग्लादेश में कुछ जो है हलचल हो गई, तो इन्होंने मन बना के बैठा था अब तो पश्चिम बंगाल की पूरी डेमोग्राफी चेंज कराएंगे और पश्चिम बंगाल के अंदर में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी बनने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से बीएसएफ ने और सेनाओं ने बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई, अपनी तैनाती बढ़ाई, उसके बाद आकर के आज ममता दीदी बयान दे रही है कि घुसपैठ हो रही है। कल तक तो बोलती नहीं थी। हम जिंदगी भर कह रहे हैं कि बांग्लादेश से जो है पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होती है। स्वयं 2012 में वो खुद बोलती थी, लेकिन पिछले दिनों चुप थी। अब बोल रही है घुसपैठ हो रही है। तो मेरा तो एक ही बात है, मान लीजिए बॉर्डर में पूरे हिंदुस्तान के साथ 4500 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर हम बांग्लादेश से शेयर करते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में 2200 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर शेयर करते हैं। मान लीजिए कहीं पे जहां पे फेंसिंग नहीं है, ओपन बॉर्डर है, बीएसएफ से या जवान से चूक हो गई, घुसपैठ हो गया, तो अंदर तो पुलिस आपका है, जिला का प्रशासन आपका है। आप एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोटर कार्ड बनाती हो, आधार कार्ड बनाते हो, राशन कार्ड बनाती हो, हमारे आवास योजना का पैसा देते हो और हमारा जो है राशन उनको देती हो, तब आपको लगता है आपके वोट बैंक के लिए ठीक है। मुझे लगता है किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और आज जो पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में जो भी पश्चिम बंगाल है, जिस स्थिति में हम थे, हमने बहुत कुछ खोया है और पश्चिम बंगाल अपनी गरिमा को वापस पाना चाहता है। আজকে বর্ডারে কতগুলি করা পরিকাঠামো তৈরি করা হয়, আপনি কি সেখানে সাহায্য করবেন? और दूसरी बात, मैं रायगंज की जनता का आभारी हूं कि आपने दूसरी बार हमारा सांसद चुना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपने विश्वास किया और इस बार एक नया नेतृत्व कार्तिक दा के रूप में आपने सदन में भेजा है। और मुझे पहली बार आज आने का सौभाग्य मिला है। जवान है, बहुत तेज तर्रार अपनी बात रखते हैं, बहुत सारे मंत्रियों के साथ मिल करके इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और मुझे भी बार बार कहते रहते हैं। सो मैं ऐसा मानता हूं कि जिसके हकदार उत्तर दिनाजपुर की जनता जो हक और जो अधिकार रखते हैं, उनको वो सम्मान और अधिकार जो है कार्तिक का दिलाएंगे। और आपके माध्यम से मैंने आज भी पब्लिकली ये कहा है कि जो कुछ भी विकास से रिलेटेड यहाँ की समस्याएं रहेंगी, उसके समाधान के लिए आपके पास कार्तिक दा है, उसके ऊपर टॉप ऑफ इट जो भी सहायता करनी होगी मैं अवश्य करूंगा। और आप सब ने मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखा, मैं इसके लिए भी आभारी हूँ। और नॉर्थ बंगाल को लेकर के भारत सरकार की कई योजनाएं हैं और आने वाले समय में आपको उन सब का भी लाभ मिलेगा। आज जिस तेजी के साथ दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी के आसपास में काम हो रहे हैं, उसी गति के साथ अन्य हिस्सों में भी, नॉर्थ बंगाल के और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में भी वो काम होंगे। हमारा रायगंज का एमपी कार्तिक पॉल, उसने अभी एम्स को लेके ममता बनर्जी को भी चिट्ठी दिया है सीएम को। तो अभी तक कोई एम्स, दूसरा एम्स के लिए कोई चिट्ठी? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा नहीं गया हूँ, है। नॉर्थ बंगाल में एम्स बनेगा ये तय है और इसकी घोषणा बहुत जल्द होगी, ये भी तय है। और कलकत्ता ने या साउथ पश्चिम बंगाल ने, आप जो भी कह लो, हमेशा से नॉर्थ बंगाल को ठगा है। हम डिप्राइव हुए हैं, हमारे यहाँ पे सड़कें ठीक नहीं है, हमारे यहाँ पीने की पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, हमारे सरकारी स्कूल ठीक नहीं है, हमारे सरकारी अस्पताल ठीक नहीं है। कुल मिला के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार का बहुत बड़ा रेवेन्यू नॉर्थ बंगाल की तरफ से जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी,
जो हमको जो है डेवलपमेंट विकास के लिए हमको जितना पैसा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उदाहरण के तौर पे नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड का बजट 800 करोड़ रुपए है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार का साल का बजट 3 लाख करोड़ है। उसमें से जो है 1% से भी कम हमको मिलता है और उसमें से 450-500 करोड़ रुपए खर्च होता है, बाकी 300 करोड़ तो लैप्स होकर चला जाता है। सो नॉर्थ बंगाल की जनता स्वाभिमानी है, हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं और नॉर्थ बंगाल ने अब ये तय किया है कि जिस तरह के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार और शोषण होता रहा ये अब होने नहीं देंगे और नॉर्थ बंगाल इस चीज को समझ चुका है। इसलिए नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी है और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल का बाकी लोग भी जल्दी से जल्द इस बात को समझेंगे। तो ये एम्स कहाँ पर होना चाहिए? देखिए, मैं अभी उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा कि एम्स कहाँ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कार्तिक भाई भी मेरा दोस्त है, मेरे लिए पूरा नॉर्थ बंगाल मेरा परिवार है। ये सरकार को तय करने दीजिए सुविधा के हिसाब से, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखना, एम्स मतलब सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं होता, फैकल्टी है, कनेक्टिविटी है, फैसिलिटी है, कई चीजें हैं। वो सब देख करके सरकार को जो उचित लगेगा सरकार निर्णय लेगी। कार्तिक दा ने हमेशा कहा है। और देखिए, ये तो आज एक भी जो नॉर्थ बंगाल में आपका पश्चिम बंगाल में जो एम्स है उसकी स्वीकृति तो रायगंज में ही हुई थी। तो रायगंज को तो सबसे ज्यादा ठगा है इस टीएमसी सरकार ने और ले जाके कल्याणी में कलकत्ता के पास उस अस्पताल को बना दिया, जबकि आवश्यकता हमको थी। हमारे यहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के लोग रहते हैं, पड़ोस में नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश से भी बहुत सारे मरीज इलाज कराने के लिए आते रहे हैं, बिहार है और आपका सिक्किम है, आपका आसाम है। सो करीब करीब जो है 5 करोड़ से ज्यादा आबादी को हम भी कैटर करते हैं। सो हमारा इतना अधिकार था, लेकिन वो अधिकार भी हमसे छीना। বিতর্ক সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার কিছুদিন আগে আলোচনা হয়েছে যে শিলিগুড়ি কিংবা তার আশেপাশে একটা এইমস হওয়ার জন্য আলোচনা চলেছে, একটু বলে নি স্যার। কিন্তু 2008 সালে কেন্দ্রীয় সরকার রায়গঞ্জে অনুমোদন দিয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে রায়গঞ্জে এইমস বা শিলিগুড়িতে এইমস হওয়ার ব্যাপারে যৌক্তিকতা কতটা, কোনটাকে প্রাধান্য দিচ্ছেন? सुनिए, ऐसा 2008 में अप्रूव हुआ था, नहीं मिला, रायगंज को ठगा। लेकिन आप भी पत्रकार हूँ, मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आप जो हेडलाइन जितना मर्जी खोजो मैं आपको हेडलाइन नहीं दूंगा, समझे? लेकिन टीएमसी वालों ने कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है एम्स तो वो खुद से ही कर ले। देखिए, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है और मैं ये भी बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल में जो दूसरा एम्स बनेगा वो भारत सरकार के जमीन में बनेगा, क्योंकि ये तो जमीन देंगे नहीं। सो इसीलिए हमने ये तय कर लिया है कि भारत सरकार के जमीन में ही वो एम्स को हम बनाएंगे, ये भी तय है।